Hello and good morning everyone. This is Kirti Singh bearing roll number 200142 and my topic of presentation is National Policy for the Empowerment of Women 2001. So as we know, the principle of gender equality is enshrined in the Constitution in its preamble, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, and the Constitution not only grants equality to the women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in the favor of women, but still there is a wide gap between the policies, plans, and related mechanisms on the one hand and the reality of the status of women in India on the other. Consequently, the access of women, particularly those belonging to weaker sections including SC, ST and other backward classes and minority, majority of them are in the rural areas and in informal unorganized sector, and access for them to education, health facilities and productive resources is very inadequate. Therefore they remain largely marginalized, poor and socially excluded. So the act came into existence to rectify these things. So the goal of this policy is to bring about the advancement एंड डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. प्रीवियसली क्या होता था कि जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह आती थी वो सारी की सारी फोकस करती थी कि वुमेन का वेलफेयर कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ पर बात हुई कि वुमेन्स का एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट कैसे हो. एम्पावरमेंट कि वो किस तरह से इतने सक्षम हो कि खुद के डिसीजंस खुद ले सकें या किसी भी विषय पर वो डिसीजन मेकिंग कर सकें. So the first objective is to creating an environment through positive economic and social policies for the full development of the women to enable them to realize their full potentials. मीन्स इस तरह की हमारी पॉलिसीज़ और जितने भी मीन्स बोल सकते हैं कोई भी पॉलिसी या एक्ट वगैरह आते हैं तो इस तरह के आए जिससे कि जो वुमेन है वो एम्पावर हों और खुद का जो उनका पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकती हैं इस विषय में जान सकें और वो समझ सकें कि हाँ हम ये सारे कार्य कर सकते हैं या हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ the de jure and de facto enjoyment of all human rights and fundamental freedom by the women on equal basis with the men in all aspects, political, economic, social, cultural and the civil. मीन्स जितने भी हमें एक तो समझा जाता है कि वुमेन को ये राइट्स मिलने चाहिए और दूसरा ये है कि ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं. तो यहाँ पर होता है कि अगर वो दोनों ही राइट्स नहीं मिले हैं, मीन्स चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, तो ये सारे राइट्स वुमेन को मिलने चाहिए. नेक्स्ट, equal access to participation and decision making of women in social, political and economic life of all ऑफ द नेशन. मीन्स जो हमारी कंट्री है उसका कोई भी आस्पेक्ट है, किसी भी विषय में डिसीज़न लेना है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, तो वहाँ सभी प्रकार से वुमेन खुद के डिसीज़न ले सकें या खुद की भी कुछ एक पर्सपेक्टिव रखती हों, मतलब सोच हो उनकी खुद की भी. नेक्स्ट, equal access to women to health care, equality, education at all levels, career and vocational guidance and employment, equal remuneration, occupational health and safety, social security and public office etc. मीन्स जितने भी फैसिलिटीज़ जैसे मैन को प्रोवाइड होती हैं तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ वुमेन को भी मिलें. Next is strengthening legal systems aimed at eliminating of all forms of discrimination against women. कोई भी इस तरह का अगर लीगल सिस्टम है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं या कोई भी ऐसी लीगल अमेंडमेंट किया जाए जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन पहले से हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन आगे कंटिन्यू ना हो. ये सारे के सारे जो भी मेजर्स हैं वो पॉजिटिव वे में लिए जाने चाहिए, मीन्स जो वुमेन के फेवर में हो. Next is changing societal attitudes and community practices by active participation and involvement of both men and women. Means
अगर जो गवर्नमेंट है वो कितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए, जहाँ पर हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी और इंडिविजुअल एटीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे, तब तक कोई भी एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी मैन और वीमेन जो हम सोसाइटी में रहते हैं, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि वो समझ सकें सभी। नेक्स्ट इज़ मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। मीन्स जो जेंडर पर्सपेक्टिव्स बने हुए हैं, तो वो इस तरह से उनमें रिफॉर्म होना चाहिए कि दोनों ही जेंडर्स को, या फिर मीन्स थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, सभी को इक्वल समझा जाए। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। जितने भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का होता है वुमेन के साथ या फिर गर्ल चाइल्ड के साथ, कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता है, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो बर्थ से पहले ही उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन करा के और उनकी भ्रूण हत्या करा दी जाती है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ building and strengthening partnerships with civil society, particularly women organization। जितने भी हमारे NGOs वगैरह होते हैं या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो women के इम्प्रूवमेंट के लिए या एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है, तो उसके साथ एक कोऑपरेशन में काम करे गवर्नमेंट भी और जो लोकल पॉपुलेशन है कंट्री की, वो सभी। So what are the perspectives, means ways of डूइंग वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। सो यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं कि किस तरह से हम जो विमेन की सिचुएशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक जुडिकल लीगल सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, rights of the girl child, and mass media. We will discuss one by one all of these. So the first is policy perspective, जुडिकल सिस्टम। मीन्स जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, इसमें इस तरह से चेंजेस आने चाहिए जिससे कि जो वुमेन है उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाए। अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वुमेन इससे ओवरकम कर पाए, इस तरह के चेंजेस और रिफॉर्म्स होने चाहिए। या फिर उनसे रिलेटेड, जैसे कि हमें प्रॉपर्टी राइट्स, अगर वुमेन की बात की जाए, जो हमारी सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होती है मैन टू मैन। तो यहाँ पर इस तरह की चेंजेस होने चाहिए कि जो वुमेन है उन्हें भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, मतलब उन्हें का भी जो हिस्सा हो वेल्थ में, जिससे क्या होगा, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग। मीन्स वुमेन को इस तरह से एम्पावर करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, चाहे वो लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, कोऑपरेटिव है या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। मीन्स कोई भी क्षेत्र है हमारे देश में, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। मीन्स हमें इस तरह की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम चलाने चाहिए कि जिस तरह से कहीं पर भी कोई कमियां रह गई हैं, मतलब दोनों जो जेंडर्स हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे दूर किया जा सके, इस तरह के इंटरवेंशंस किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये किस तरह से किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ पॉवर्टी इरेडिकेशन, माइक्रो क्रेडिट, women and economy, globalization, women and agriculture, women and industry, support services। मीन्स फर्स्टली तो हमें जो पॉवर्टी है उसका इरेडिकेशन होना चाहिए। देखो, जो वुमेन हैं उन्हें जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी उनकी जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो इंक्रीज़ होगी और वो इंडिपेंडेंट होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उन्हें। माइक्रो क्रेडिट मीन्स एक छोटे लेवल पर जो क्रेडिट दिया जा सकता है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना खुद का काम कुछ शुरू किया जा सके, कर सकें। वुमेन एंड इकोनॉमी मीन्स जब भी कोई बजट प्रिपेयर किया जाता है या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, तो उसमें वुमेन को भी ध्यान में रखा जाए कि उनके वेलफेयर के लिए किस तरह से काम कर सकती है ये पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन मीन ग्लोबल लेवल पर एक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि वुमेन का एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली किस तरह से हो सकता है। और वुमेन एंड एग्रीकल्चर, जिस तरह की अभी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या है कि जो हमारी मेल
पर्सन्स हैं, मतलब इंडिविजुअल्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो विमेन है वो रूरल एरियाज़ में रह जाती हैं, तो वो जो अपनी फार्मिंग है, मतलब खेती वगैरह है, उसे सबको देखती हैं। तो यहाँ पर वुमेन को सपोर्ट किया जाना चाहिए इस तरह से कि उन्हें जो बीज वगैरह हैं उनकी नॉलेज दी जानी चाहिए, जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके तरह उन्हें किस तरह से यूज किया जा सकता है, या फिर सोइल को किस तरह से वो अच्छे से रख सकती हैं जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ ना हो। वुमेन एंड इंडस्ट्री, ये वुमेन का इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेशन किस तरह से हो सकता है, और उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ मीन्स जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो इंडस्ट्रीज़ में अगर वो काम करती हैं। जैसे किसी जो वुमेन है उसे रात में कहीं किसी फैक्ट्री में काम करती है तो उसके आने जाने की फैसिलिटी हो और सिक्योरिटी उसकी इंश्योर हो जिससे कि वो वर्क करने में हेजिटेट ना करें। नेक्स्ट, सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज इस तरह से हो सकती हैं कि घर में बच्चे हैं तो उनके लिए क्रचेस फैसिलिटी हो कि बच्चों को वहाँ पर छोड़ सके कंपनी में, या फिर एजुकेशन फैसिलिटी हो, या आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हों, इस प्रकार की फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है? एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हाउसिंग एंड शेल्टर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वीमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। जो वीमेन हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन हमारी जो स्कीम है उसके तहत भी क्या होता है कि 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है जो फीमेल्स हैं उन्हें एजुकेशन से फिर भी दूर रखा जाता है, तो ऐसा ना हो, सभी को एजुकेशन मिले, इलिटरेसी को दूर किया जा सके, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी उनके एसेसिबल हों। न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, जैसे कि आंगनवाड़ी, इस तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, गवर्नमेंट उनके लिए इस तरह के फूड प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है वो इसी तरह की पॉलिसीज से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ध्यान में रखकर। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाउसिंग एंड शेल्टर, ये सभी फैसिलिटीज़ वुमेन को प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो वुमेन के अगेंस्ट जितने भी प्रकार का वायलेंस होता है, मतलब चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, या फिर सेक्सुअल हो, वो घर में हो सकता है, घर के बाहर हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कभी कभी क्या होता है हमें ट्रेडिशंस में है, मतलब चलते हुए आ रहे हैं कि घर में जो है वो अगर मेल कुछ बोलता है तो वही चलेगा, चाहे वो मतलब मारपीट करे, तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड के किस प्रकार के राइट, कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बराबर प्रोवाइड की जाएँ जिस तरह की मेल चाइल्ड को होती हैं। दूसरा, जो पेरेंट्स सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, और बेसिकली इसलिए कि जिससे कि वो जो गर्ल चाइल्ड है उसे बर्थ ना दें, मतलब जो बॉय चाइल्ड है उसे ही वो जन्म देना चाहते हैं, और जो गर्ल चाइल्ड है उसे मतलब गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ है, या फिर छोटे बच्चे की मतलब चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है लड़कियों की, तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट इज़ मास मीडिया। तो मास मीडिया का प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है, जैसे कि मूवीज़ में इस तरह का ना दिखाएं कि वुमेन को ही मतलब नीचे गिराने की कोशिश करती है। हो सकता है कि इस तरह की इमेजेस दिखाए जाएं कि वुमेन अपने लिए कुछ काम कर रही है, और इससे वो खुद को एम्पावर कर रही है और दूसरों को भी एम्पावर करती है। इससे क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी थोड़ी जो एक पर्टिकुलर स्टेरियोटाइप सोच बनी हुई है तो वो एलिमिनेट हो सकती है। सो व्हाट आर द ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे कि ये सारी चीज़ों को किया जा सके स्मूथली। तो अनेबलिंग मतलब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, जितने भी हमारे लीगल सिस्टम हैं उनमें रिफॉर्म किया जा सकता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जा सकता है, साथ में एक्शन प्लान जो भी हमारे होते हैं उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिल सकें, इस तरह का मैनेजमेंट किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स मीन्स सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी इस फील्ड में वर्क करते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें तो अच्छा होगा। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मीन्स जैसे कि 1/3 सीट्स रिज़र्व की जाती हैं विमेंस के लिए कि उन सीट्स पर विमेन ही इलेक्शन
फाइट करेंगे और वो मतलब इलेक्ट होंगी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप विद वॉलेंट्री सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे NGOs वगैरह हैं उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, लास्ट इज कंक्लूजन। We can say that a nation can only be developed when all the citizens of the nation work for it. So the women empowerment holds key to all progress of a nation. Means so जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए हैं और इंडिया ने उनमें पार्टिसिपेट किया है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 2001 का फॉर्मुलेशन हुआ। और इससे क्या होगा कि थोड़े जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेजर्स लिए गए जिनसे कि जो भी वुमेन एम्पावरमेंट का गोल है उसे अचीव किया जा सके इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। So these are the references. Thank you so much.